this is the IAM roles. जनरली हम रोल्स ये केसेस में ज्यादा यूज करेंगे. I'm enlarging this. Granting application that run as EC2 instance access AWS resource. ठीक है, इसका मतलब मैं प्रैक्टिकल बता के स्टार्ट करूंगा. मेरे पास EC2 इंस्टेंस है, राइट. EC2 इंस्टेंस मैं अभी बिल्ड कर रहा हूँ. नेक्स्ट ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ. ओके, ये तो मैं पहले भी बताया था कि बनाना पड़ेगा. होगा मुझे हर बार इवन AWS रिसोर्सेस एक्सेस करने के लिए मैं अगर EC2 इंस्टेंस में EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ तो EC2 इंस्टेंस विजिट करना पड़ेगा. If you are creating S3 storage, you have to visit the S3 storage. सुबह ठीक है. Now the question is, who is accessing this? Root user account. So root user account switching from one services to other services. Now assume there's a requirement. What's the requirement? Okay, let's connect through command prompt. It's not a power, it's Ubuntu. Assume that root credential I wanted to connect. जस्ट मैं डायरेक्टरी बनाया, यहाँ पर मेरी की है. की यहाँ पर क्यों नहीं है? तो की कैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ से? ऐसे आई एम जस्ट रिविजिटिंग console. I think this is still initializing stage. We have to wait till the initialization is completed. Okay. कनेक्ट नहीं होगा, फिर भी स्टिल होगा. Now the question is, this server of private IP of 172.31.17.49, can this server access S3 storage? The answer is no. Why? Because we did not configure AWS configure. We did not configure anything on this server. It's just now launch instance. S3 storage access करने के लिए. Now the question क्या है, बोलते S3 storage कहाँ पर है? Actually ये global है. What do you mean by global? मतलब S3 storage available on the all the regions. ठीक है. और मेरा EC2 instance कहाँ पर है? Default VPC में. Forget. Okay, I will explain what is VPC, default VPC. मतलब default network में, दोनों भी default network में. Are they both belongs to same network? The answer is yes. They both belongs to, मतलब EC2 instance and S3 storage both are and same, what's that, same network. Are you sure? Yes. Sorry. So if both network, if I wanted to access S3 storage from EC2 instance, what I'm trying to do is, from one of the AWS services, I wanted to access another AWS services.
The following scenario, some highlights of challenges that you can be addressed by delegating the access. What are the, I mean, why do we use the roles? Manage the roles. Don't read all this stuff. I will make the thing simple, then go for the theoretical part. Granting application that run on EC2 instance access AWS systems. In other words, EC2 instance is one service. S3 storage is also another service. From one service to access another service in AWS, we need roles. Okay. Simply, I can't say AWS S3 LS. It will tell you please configure AWS. You simply cannot execute the command. To configure, we need again secret key and those two keys were required, right? Access key and secret keys. अब उसको यहाँ पर लाना पड़ेगा. Then only you can configure it. किसको लाना पड़ेगा? Access key या secret key. कौन से users के लिए? As a root or the user which is AWS S3 authenticated. I mean कौन से user को है वो user को या root को. Okay, अब मैं root का यहाँ पर configure करना पड़ेगा. AWS configure ये command से. No, that's not a best practice. It's a security violation. अगर आप हर सर्वर पे हर सर्वर पे अगर आप इसी तरह कॉन्फ़िगर मनाजर भाई थोड़ा मैं 2-5 मिनट लेट ज्वाइन कर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देते क्या मुझे क्या हुआ थोड़ा 2 मिनट नहीं भाई मैं ज्यादा अभी 1 सेकंड ही स्टार्ट हुआ मैं करके तो EC2 यूजर क्या है सर ये EC2 यूजर क्या है आप लॉगिन किए क्या इसके बारे में भूल जाओ भाई EC2 यूजर अच्छा फॉरगेट अबाउट EC2 यूजर आप इसकी जरूरत नहीं है आपको ये AWS प्रोवाइड करता दिस इज नथिंग टू डू विद आवर AWS रोल मैं ऐसा स्टार्ट करा अब कितनी देर हो रहा आके मैं एक मिनट हो रहा स्टार्ट कर गया ठीक है सो अगर S3 इज अ सर्विस दिस सर्वर इज वन सर्विस ये कंप्लीट सर्वर है जिसमें मैं लॉगिन किया ओके टू कॉन्फ़िगर टू एक्सेस फ्रॉम वन सर्विस टू अदर सर्विस वी नीड रोल्स मोस्ट यूज केसेस आई एम टेलिंग यू अगर बेस्ट यूज केसेस और मोस्ट यूज केसेस यही है एक सर्विस और एक सर्विस को एक्सेस करने के लिए आपको रोल्स की जरूरत है ये अपने को पूरे क्लासेस मतलब टिल एंड तक हम इस चीज की जरूरत है अपने को क्या रोल्स में हर टॉपिक में रोल्स पिक्चर में आएंगे ठीक है फॉरगेट अबाउट दैट ठीक है व्हाट इज द प्रॉब्लम AWS कॉन्फ़िगर बना के रूट का एक्सेस कर सके रेडी की दे दो व्हाट्स अ बिग डील मानते हैं ऐसा 100 सर्वर है 100 सर्वर में दे दिए ओके अगर 100 सर्वर में किसी को एक सर्वर का एक्सेस मिल गया हैकर्स को so you lose all your environment so this is not a best practice this is not a security practice करके देखना है तो हम करके देख सकते हैं बट एनी मैं सिर्फ फिर रूट पासवर्ड रीजनरेट आई डोंट वांट टू डू दिस ऑल स्टफ ओके ये इसके बारे में पहले भी बताया था AWS कॉन्फ़िगर अगर सेम एक्सेस की सीक्रेट की रीजन नन ऐसा आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कॉन्फ़िगर करने के बाद आप बेझिझक रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं बट दैट्स नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस ओके तो करेंगे क्या और एक बात वन मोर थिंग नहीं इसमें ठीक है चलो नो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है इसमें प्रॉब्लम रोल असाइन करना किसे EC2 इंस्टेंस को रोल असाइन करना यूजर की बात मत करिए इसमें दिस यूजर्स EC2 ये EC2 इंस्टेंस को रोल असाइन करना ठीक है सो दैट ही कैन एक्सेस so that he can access other resource other service ठीक है चलो go to the roles एक सेकंड भाई कल लास्ट टॉपिक रहेगा हम नेटवर्किंग में चले आएंगे सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी लर्न IP subnets and IP addresses subnet
एंड आईपी एड्रेसेस आपकी यूट्यूब में मिल जाएंगे, हिंदी में, उर्दू में, जिसमें जिसको जो समझना है सीखिए। ये सर आप 10 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट का रहेगा। ये टॉपिक आपको पढ़ के आना है, मे बी डे आफ्टर टुमारो या टुमारो नहीं होगा बट डे आफ्टर टुमारो। ठीक, कहा था, भूल गया, एक सेकंड। ओके ओके, रोल्स भाई, रोल बनाने का पर्पस क्या है? ठीक है, चलो रोल देख लेंगे हम। क्रिएट ए रोल। इसमें रोल्स में टॉपिक देखिए, एडब्ल्यूएस सर्विस रोल चाहिए, अकाउंट रोल चाहिए, वेब आइडेंटिटी, कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी, बट जनरली हम यही यूज करते, मोस्ट यूज केसेस। एडब्ल्यूएस अकाउंट के लिए हम लोग रोज एडब्ल्यूएस अकाउंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कैसा है ट्रस्टेड, सिलेक्ट ट्रस्टेड एंटिटी कैसा नेविगेट करें? वही नेक्स्ट मारते आएगा, मैं पीछे आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ग्रुप यूजर्स रोल्स, यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए रोल्स कॉन्सेप्ट है। अगर पॉलिसीज क्लिक करो पॉलिसीज आएंगे, रोल्स क्लिक करो रोल्स क्लिक आएंगे। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोल्स है, तो फॉरगेट अबाउट दिस वन। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, रोल यहाँ पर क्लिक करना है, जो मैं जो सर्किल में राउंड कर रहा हूँ, इसे क्लिक करो। रोल्स, किस तरह का रोल्स चाहिए? रोल्स जनरली ये 4 कैटेगरी यूज कर सकते हैं। 99% केसेस में हम यही यूज करते हैं। अलाउ AWS सर्विसेज लाइक EC2, लैम्डा और अदर टू परफॉर्म एक्शन ऑन दिस अकाउंट। ठीक है, EC2 इंस्टेंस, EC2 इसमें बहुत से कैटेगरी, करना क्या चाह रहे हैं ये, allow EC2 instance to call AWS services on your behalf। मेरे अकाउंट में इंस्टेड ऑफ यूजिंग माय रूट अकाउंट और एनी अदर अकाउंट, EC2 इंस्टेंस ओके एक्सेस अदर AWS सर्विसेज। रोल बन गया? नहीं बना। आप परमिशन ऐड कर सकते हैं। क्या करना है भाई, रोल्स में क्या है, परमिशन ही रहेंगे, बट क्या है, एक मशीन को दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं है यूजर्स को नहीं दिया जाएगा, दे दिए। मैं समझ लेना, जो पॉलिसीज बनाए वो पॉलिसीज हम एक EC2 इंस्टेंस को दे रहे हैं, रफली अगर बोला गया तो। हाँ, द आंसर इज यस। रोल का नाम क्या रखेंगे? AWS S3 लिस्ट EC2 इंस्टेंस। भाई इसमें क्या है, कुछ नहीं है, एक EC2 इंस्टेंस सेलेक्ट करे, उसमें बिहाफ ऑफ, मतलब EC2 इंस्टेंस को परमिशन दे रहे कि दूसरे सर्विस को आप एक्सेस कर सके। तो दूसरे सर्विस एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। परमिशन कहाँ से उठाए हम? पॉलिसी से उठाए। यहाँ पर देखो, पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी पॉलिसी से। अलाउ अज्यूम रोल बोलेंगे से। ओके ओके, ये क्या करेगा? ठीक है, अगर नेक्स्ट क्रिएट रोल, भाई रोल बन गया सीरियसली। मैं रोल बनने के लिए एग्जिस्टिंग पॉलिसी यूज करें, तो व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको पॉलिसी चाहिए। ठीक है, ये रोल क्या करेगा यहाँ पर खुद देखिए, EC2 इंस्टेंस सर्विसेज EC2। इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये रोल का पर्पस यही है कि इट एक्सेस अदर AWS सर्विसेज। रोल को क्या चाहिए? प्राइमरली पॉलिसीज चाहिए, इन अदर वर्ड्स परमिशन चाहिए। डन। टैक्स permission, so I don't want to create a confusion on this part। ठीक है, जनरेट पॉलिसीज, क्लाउड ट्रेल, ये कुछ भी नहीं करूंगा मैं। अब भाई ये आप रोल बना दिए, रोल किसी ना किसी को देना पड़ेगा, किसी को देंगे। ओके चलो, विल डू वन मोर थिंग। अभी रोल अपने पास रेडी है, AWS S3 लिस्ट। मुझे ये समझे ये क्वेश्चन कि हमने रोल बनाया, लेकिन वो रोल हम क्या करें,
एक S3 का पॉलिसी अटैच करे रोल, बस उतना ही ना? अभी नहीं करे, अभी नहीं करे। हाँ पॉलिसी अटैच करे, हाँ पॉलिसी अटैच करे। पॉलिसी मतलब ये बंदा EC2 इंस्टेंस, बंदा ही समझो, EC2 इंस्टेंस S3 स्टोरेज को लिस्ट ही कर सकता है, हर चीज नहीं कर सकते इसने। यहाँ से आप यू कैन डू ओनली फ्यू थिंग्स, बट EC2 इंस्टेंस कैन एक्सेस अदर सर्विसेज, बट उसमें अदर सर्विसेज में ओनली S3 स्टोरेज को ही लिस्ट कर सकता है, नॉट ऑल द सर्विसेज। रेस्ट्रिक्शन, राइट? ठीक है। क्या हम आप क्या करेंगे, EC2 इंस्टेंस पे जाएंगे, जो मशीन है या सर्वर है या कुछ भी बोले सर, भाई म्यूट कर लिया करो आप लोग। भाई मैं रीजन अलग रीजन में चले गया, इसलिए मेरे VM नहीं दिखा रहा था। ठीक है, इसे कुछ भी नाम रखो, टैगिंग इंपॉर्टेंट है टैगिंग, बट अभी नहीं। ओके, सो अपने पास एक EC2 इंस्टेंस रेडी है। करना क्या है, ऑलरेडी EC2 इंस्टेंस अगर है उसको रोल अटैच कर सकते हैं क्या, या इसको न्यू क्रिएट करना पड़ेगा? अटैच कर सकते, थोड़ा नहीं आनी, एक्शन कनेक्ट मैनेज एंड टेम्पलेट नहीं, इंस्टेंस सेटिंग या कोई रोल 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 या रोल बेस्ड नहीं। ओके, एक सेकंड, गोइंग बैक। अब रोल असाइन कर सकते हैं भाई। मॉडिफाई एम रोल, सॉरी मैं हर जगह चेक कर रहा था, ये सिक्योरिटी कंसर्न है। तो यहाँ पर आइए, मॉडिफाई एम रोल बनाइए। हम क्या कर रहे हैं, जो रोल अभी बनाए, रोल में क्या है, EC2 इंस्टेंस S3 स्टोरेज को लिस्ट कर सकता। रिस्ट्रिक्शन मतलब रेस्ट्रिक्टेड परमिशंस, तो करने के लिए ये रोल किसी ना किसी को देना पड़ेगा। हम एक सर्वर को दे रहे, सर्वर का ये देखो, वेब मॉडिफाई सिक्योरिटी में गए, यहाँ पर नीचे रोल आ रहा दिख रहा, डाटा रोल आ गया, अटैच कर दिए भैया, सक्सेस ऊपर दिख रहा, सक्सेसफुली अटैच AWS S3 लिस्ट EC2 टू इंस्टेंस। कैसे अटैच करें, यहाँ पर गए, सिक्योरिटी में गए, एक मिनट इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर नहीं आएगा, नहीं तो सिक्योरिटी में गए, यहाँ और मॉडिफाई रोल मारे, एक रोल सेलेक्ट कर लिए, कितने भी रोल्स अटैच कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करें अब, हम क्या करें, एक रोल बनाए, रोल को, रोल में, रोल का पर्पस क्या है, EC2 इंस्टेंस कैन एक्सेस अदर AWS सर्विसेज। उसमें रेस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के लिए क्या करें हम, उसको एक S3 लिस्ट पॉलिसी अटैच करें। तो ये क्या होगा, अभी अटैच करने के बाद, नाउ EC2 इंस्टेंस कैन एक्सेस S3 storage and list them only, not all the services। ये होने के बाद पार्ट 2 में क्या करें, go to one of the EC2 instance and attach this role। मतलब हर बार हर EC2 इंस्टेंस को ये करना पड़ेगा, द आंसर इज यस।
तो जो EC2 इंस्टेंस ये रोल अटैच है वही ये एक्शन परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है भाई, ये हर किसी के साथ करना पड़ेगा। मतलब समझो अगर डायनामो डीबी एक स्टोरेज है, डायनामो डीबी स्टोरेज अगर S3 के साथ अटैच करना चाह रहा, S3 के साथ अटैच मतलब S3 स्टोरेज, ये भी स्टोरेज है, स्टोरेज के साथ एक्सेस करना चाह रहा तो आपको रोल्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, रोल्स बनाने के लिए पॉलिसीज चाहिए। मालूम है, पॉलिसी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हम। गो टू हियर AWS LS मारिए, चलेगा भाई, फिर ओपन करना पड़ेगा अपने को। गो हियर, सिलेक्ट दिस वन, कनेक्ट मारिए, नीचे आइए। मैं SSH के थ्रू कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। AWS S3 इज अ कमांड है, लिस्ट access denied when calling list bucket operation denied. AWS S3 सॉरी, मुझे फिर एक बार पॉलिसी देखना पड़ेगा। गो 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 एक काम करेंगे, जस्ट टाइम बीइंग ये फिर मॉडिफाई करेंगे। एक सेकंड भाई, मुझे अभी भी परमिशन एरर आ रहा, एंड दैट्स द रीजन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मॉडिफाई इट। एक आप सेकंड। वो जो S3 बनाए थे उसके लिए तो MFA का एक वो रखे थे ना, ये ऐसी कुछ होगा शायद, वही देख रहा था मैं। तो आई मीन ये नहीं, आप आपको MFA रिमूव कर दिए थे ना, मैं एक्सेस किया था, राइट? नहीं आप MFA का जो है यूजर के लिए रिमूव करे थे, आई बिलीव S3 के लिए नहीं करे थे। और एक चीज ये है कि अगर MFA के लिए आप MFA शुड बी अ रिस्ट्रिक्शन फॉर दी यूजर। अब आप ये जो है एक इंस्टेंस जो स्पिन अप कर रहे हैं, आप उसके उसके उससे एक्सेस करने जा रहे हो, तो आई थिंक इट शुड वर्क ना भाई। नहीं, MFI मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन हम यूजर लेवल में ही दे सकते हैं, सर्विसेज लेवल में नहीं दे सकते। हाँ, तो फिर अभी अपन एक एक्सेस नहीं कर इंस्टेंस सकते। एक सेकंड रुक जाइए। ये किस लिए, S3 स्टोरेज के लिए ना, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। वो MFI के वजह से ही हो रहा। ठीक है, S3 स्टोरेज के लिए एक सेकंड हम और एक रोल बना लेंगे। ओके भाई, ये क्लियर कट परमिशन डिनाइड तभी देता कि इसको परमिशन प्रॉब्लम है। ठीक है, और एक रोल बना लेंगे। इस बार हम रोल का नाम क्या हाँ रखेंगे? हाँ, मनाजर भाई, आप जो सर्विस जो एक्सेस कर रहे हैं AWS की, कौन सी यूजर से ओके, कर रहे हैं? डजंट मैटर। नहीं, क्योंकि आप केवल तो अगर आप एक स्क्रीन पीछे जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है एनेबल MFA फॉर यूज। देखा मैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड है। नहीं वो नहीं। हाँ, आप जो है यूजर से जो S3 का कर रहे हैं ना, मतलब आप AWS S3 LS बोल के जो भी डाल रहे हैं, आप रूट यूजर से लॉग्ड इन रह के कर रहे हैं, तो नहीं बिकॉज नहीं रूट उससे यूजर को एक्सेस नहीं है MFA का। नहीं भाई, एक बात याद रख लिए, डू नॉट कंफ्यूज विद दीज यूजर्स एंड इंस्टेंस यूजर्स। इंस्टेंस यूजर मतलब, एक सेकंड कहाँ था वो, चलेगा। मशीन के अंदर यूजर्स और ये AWS यूजर्स अलग है। So never forget about the, I'm not talking about the users which is located in the instance. I'm talking about these users. Okay, ठीक है भाई, एक सेकंड कंफ्यूजन रोक देंगे हम। एक सेकंड रुकिए आप, मैं और एक रोल बनाता हूँ, देन विल गो फॉर द डिस्कशन। AWS S3 EC2, चलिए रोल का नाम मुझे यहाँ मानना चाहिए था, दैट्स ओके फाइन। नेक्स्ट ये सेलेक्ट करो, मैं अभी मालूम हो जाएगा अपने को उसमें। नेक्स्ट रोल का नाम तो याद है ना था, ये था
ठीक है चलो नो प्रॉब्लम। AWS S3 फुल EC2, भाई मैं EC2 को ही दे रहा हूँ यार, कुछ नहीं। ओके क्रिएट रोल। अभी मैं वहां पर जाऊंगा, VM के पास जाऊंगा, EC2 इंस्टेंस वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन बोलो या अमेजॉन मशीन बोलो या सर्वर बोलो, कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ेगा। सेलेक्ट करो इसे, यहाँ पर जाओ सिक्योरिटी में, मॉडिफाई द रोल, ये निकाल देंगे हम, ये फुल लगा देंगे। अपडेट रोल अपडेट हो गया भाई। मैं VM को कनेक्ट करूँगा, ये सेलेक्ट करो, कनेक्ट करो। देन दिस इज EC2 यूजर है ना, ये सिर्फ लॉगिन करने के लिए इंस्टेंस को उतना ही मतलब, मगर IAM पॉलिसीज, IAM यूजर्स एंड दिस यूजर्स आर डिफरेंट, प्लीज रिमेंबर, do not confuse with that part. सर्वर के Another way, like once you do this one, right, can you be like more detailed on these things, because I got a bit confused here. ठीक है मैं बता दूंगा। AWS S3 आ गए भाई। We got 2 buckets, ठीक है। Another way, can we remove that MFA access from there and try using that role to just check what was the issue? भाई MFA क्लियर कट एक्सेस इशू है, ठीक है चलो। नहीं, आप जो लिस्ट एक्सेस ऑलरेडी जो दिए थे, रीड ओनली एक्सेस S3 स्टोरेज को, वो क्यों नहीं चला? वो क्लियर कट पिक्चर है भाई हम साहब, खुद एडमिन बताया देने के आंसर, बाद ही ठीक है। चला वो। नहीं नहीं एडमिन देने की जरूरत नहीं है। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फिर वहीं जा रहा हूँ। ओके पॉलिसीज में जाएंगे, पहले ये पॉलिसी को मॉडिफाई करेंगे हम। एडिट पॉलिसी, यस एक सेकंड। सेव चेंजेस मैं निकाल दिया। ओके EC2 में जाइए, रोल मॉडिफाई MFA का वो करिए। निकाले क्या? अब अभी देखें ना, मैं वो निकाल लिया, क्या निकाल लिया, सॉरी एक मिनट, मल्टीफैक्टर MFA. ऑथेंटिकेशन MFA निकाल लिया। मैं फिर बताऊंगा आप लोगों को, एक सेकंड। IAM में जाऊंगा, रोल पॉलिसीज में जाओ, यही पॉलिसी है जो मैं जिसका मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन निकाला, फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर नीचे MFA नहीं रहेगा, देखो। हाँ, उसको फॉल्स भी कर सकते शायद ना। निकाल ही देंगे तो फॉल्स करने की जरूरत क्या है। हाँ सही है। रेस्ट्रिक्ट करना है तो आप फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। Another way, क्वेश्चन है, कल हम लोग क्या करे थे, पॉलिसी में वी हैव गिवन मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, राइट? करेक्ट But from the EC2 route, I think we disabled. Something like that is happening here also. Like we have to do it from both the places. नहीं भाई ऐसा करना बल्कि रूल नहीं है, रिक्वायरमेंट है अपना, अपना रिक्वायरमेंट। आप नई पॉलिसी बना लो ना जिसमें मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, और वो पॉलिसी रोल में बना, रोल को अटैच करके रोल के थ्रू EC2 इंस्टेंस में अटैच कर सकते हैं आप। मैं वही पॉलिसी इसलिए यूज करा जस्ट फॉर मेक इजी होता, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी में जाइए, मॉडिफाई रोल, पुराना कहाँ है, अपडेट द रोल, ठीक है। रोल अपडेट हो गया सक्सेसफुली, अभी भी आ गया। Another भाई, ये मेरे ख्याल से ये सेशन को क्लोज किल करके करे तो मेरे ख्याल से we ठीक है come ठीक to है the- ठीक है, इश्यू आता बोल के एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना आप। चलो मैं आपकी मैं ऐसे ही करूंगा। यार मैं ना
AWS S3 list So it will ठीक है, have चलो because of that MF. मल्टीफैक्टर करेक्ट होना है तो फिर चेक करा तुम इसमें रोल क्या है यार देखना मुश्किल है रोल कहाँ पर है सिक्योरिटी में शायद रहेगा वहाँ है ना ऊपर यहाँ पर AWS देखो list EC2. मल्टीफैक्टर आप लोगों खुद आंसर बोल दिया है दिस इज बिकॉज ऑफ मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन मैं कुछ नहीं करा भाई और कुछ नहीं करा ना तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दिख रहा देखो AWS S3 list EC2 सीरियसली दैट्स द ओनली रीजन काजिंग दैट आप सर्वर को तो मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं दे सकते ना इट्स इंस्टेंस इट्स अ वर्चुअल मशीन नाउ ये यूजर्स बहुत से क्रिएट कर ले सकते हैं आप इसका मतलब क्या है चलो उसकी बात बता दो मैं कितने यूजर्स है बहुत से यूजर्स है भाई यहाँ पर एक मिनट मैं एसमनाजर यहाँ पर क्रिएट कर ले सकता हूँ यूजर ऐड FND एस ठीक है चलो होम अरे सिंपली एसमनाजर मार देता हूँ मैं एसमनाजर 1 एसमनाजर 2 एसमनाजर को स्विच होगा मुझे पासवर्ड भी नहीं चाहिए एसमनाजर को स्विच होने के लिए मैं यहाँ से AWS S3 कर सकता हूँ मैं रोल इंस्टेंस को दिया इंस्टेंस के अंदर ऐसे यूजर से मुझे मतलब नहीं है कौन एक्सेस करता आई डोंट केयर आई हैव गिवन कंप्लीट रोल टू दिस सर्वर कंप्लीट सर्वर को मैंने दिया है नाउ अगर मैं और एक नया मशीन बना रहा हूँ चलो मान के बनाओ नया ये रहने दो इसको एक नया मशीन बना रहा हूँ मैं यार इसी तो इंस्टेंस में जाएंगे बिल्ड ए न्यू मशीन लॉन्च एक मिनट देखो आपके कंफ्यूजन क्लियर होने की कोशिश क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर नीचे रोल बोल के कॉन्सेप्ट रहेगा देखो कहाँ है रोल 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 या बिल्ड करते टाइम पे आप रोल दे सकते हो भाई मैं रोल दे दिया यू कैन क्रिएट व्हेन यू आर क्रिएट इंस्टेंस then at that time also you can assign the role to the instance level please I am telling you again I am giving role instance level ओके 2 मशीन्स बन गए ठीक है ये नई मशीन है सेकंड वन इसका नाम रखूंगा न्यू ही रखूंगा न्यू वेब मनाजर में वो जो प्रॉड RSA था ना वो क्या था जो पसंद किया था पेम फाइल है हम जो पहले शायद अब पहले क्लास लोग नहीं प्रैक्टिस नहीं कर नहीं रहे बना हैं अब तक हम लोग पेन फाइल नहीं बना इससे पहले पूछा तो यू सेड लाइक वी आर गोइंग टू कवर इट नहीं पेम फाइल बना तो कुछ भी नहीं एक फाइल है भाई जो AWS used to authenticate from local machine from anywhere जिसके पास वो पेम फाइल है वो ऑथेंटिकेट कर सकता वो कैसे थोड़ा बताइए ना इसके बाद नहीं अभी नहीं इस टू भाई हम पूरे कंफ्यूज ए टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ मत में लाइए इट विल क्रिएट ए कंफ्यूजन बस ये तरह की है मैंने एक नया VM बिल्ड करके रखा है ठीक है फाइन ओके स्टिल वी आर इन IIM सो ओके फाइन नो प्रॉब्लम IIM में है मैं अगर इससे वहां जंप करा तो सब भाग जाएंगे क्लास छोड़ के ओके रनिंग स्टेज ओके मैं इसका भी कंसोल ओपन कर लूंगा इसको भी मैं रोल अटैच करा ओके इसमें EC2 इंस्टेंस यूजर ही है ये यूजर मैं नहीं बना रहा AWS बना रहा अरे श्योर इसमें एसमनाजर है क्या नहीं है तो ये यूजर्स के बारे में आप कभी मत सोचिए सर्वर के अंदर जो यूजर्स रहते हैं डू नॉट वरी अबाउट दिस यूजर्स फिर ये यूजर्स क्या है हम यहां पर भी तो यूजर्स बना रहे हैं IIM में IIM यूजर्स और AWS यूजर्स ये यूजर्स आपको AWS कंसोल लॉगिन करने के लिए AWS सर्विसेज एक्सेस करने के लिए एसमनाजर को हम डेटाबेस एक्सेस दे सकते हैं एसमनाजर को नेटवर्किंग का एक्सेस दे सकते हैं अगर यहाँ पर मैं जो एसमनाजर बनाया या सेकंड टाइम में सेकंड मशीन में इसको कुछ नहीं कर सकते he can't do anything he depend on the इंस्टेंस को जो प्रिविलेजेस है यहाँ के एसमनाजर को वही प्रिविलेज रहेंगे
So my another words, do not worry about the user which is in the instance. This is a different from AWS user. So ये किस लिए? एस मनाजर ये यहाँ के सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए, यहाँ अगर कुछ बनाना है इंटरनली ये सर्वर के अंदर, ओनली इस सर्वर के अंदर, तो इस सर्वर के अंदर ही एप्लीकेबल होंगे, बाहर कहीं भी ये यूजर्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। AWS अपने लिए इजी एक्सेस के लिए यूजर बना के देता अपने, बस उससे हटके कुछ भी नहीं है। मैनेजर भाई क्या बोल कुछ मैं अब फिर अपन ये तो आप जो है सो AWS के यूजर्स बता रहे हैं which will be different from the local machine, आप जिस मशीन में है वो मशीन से नहीं है, लोकल, these users are specific to this local machine only, Local they don't machine. do any other. Correct. Right. So but how we are going to authenticate with the ADA with the local users? For example, अगर आप users है जो going to use the AWS, उनको authentication भी तो देना है ना, अपने को AD authentication देना है, या फिर अगर if they are using from the Linux machine. तीन चीजें कमांड मत करिए आप, एक स्पेसिफिक पूछिए। AD ऑथेंटिकेशन अलग चीज है, आप AD ऑथेंटिकेशन निकाल के पूछिए और AD ऑथेंटिकेशन कंबाइन करके पूछिए, तो देन दैट पार्ट इज नॉट डिस्कस्ड एट। तो कैसे मैं वही कैसा करेंगे अब? फॉर एग्जांपल AD ऑथेंटिकेशन छोड़ दीजिए, आप जस्ट लिनक्स यूजर है कोई, उसको जो है सो आप कैसा ऑथेंटिकेट करते हैं AWS यूजर के साथ? भाई AWS यूजर नॉट स्पेसिफिक टू वन मशीन, right? These users Exactly, are right. Okay, yeah, But users every Linux machine will have different, every user will have different GID, right? हाँ, UIDs तो and GIDs. ये यूजर यहाँ पर जो सर्वर में डिफाइन करने के लिए, ये एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। समझ नहीं आ रहा? यूजर अभी स्पेसिफिक नहीं है। नहीं, ये यूजर सपोज install MySQL, एक यूजर आएगा, सॉरी MySQL सर्वर मानना चाहिए था मेरे को, नो एक मिनट, MySQL शायद सर्वर या MySQL सर्वर या MySQL हाइफन सर्वर, शायद नहीं, MySQL स्टार मारूंगा। मैं एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, अब मैं MySQL डेटाबेस इंस्टॉल कर रहा हूँ, राइट? एक यूजर बनाएगा MySQL, ये यूजर MySQL खुद बिल्ड करेगा, तो ये यूजर किस लिए? डेटाबेस स्टार्ट स्टॉप करने के लिए इंटरनली, ये AWS से कोई मतलब नहीं रखता है, ये जो भी यूजर्स है, राइट? सो इससे और AWS यूजर से कोई कनेक्शन ही नहीं है। AWS यूजर्स क्या है? AWS रिसोर्सेस एक्सेस करने के लिए, इसका ये मतलब नहीं है सर्वर में जाके ये ऑथेंटिकेट करेंगे, नहीं, सिर्फ AWS सर्विसेज को ऑथेंटिकेट करेंगे, वो भी कंसोल के थ्रू या कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है, हो गया। अभी मैं नया यूजर बताऊंगा आपको, मैं कहां पर यूजर कहां पर है, ठीक है, ग्रेप -i MySQL, यूजर यहाँ पर नहीं बना, शायद ऐसा जरूरी नहीं बनना है, बल्कि जैसे कि एग्जांपल देख लेंगे, SSH यूजर है, ये सिर्फ SSH करने के लिए, ये यूजर है, ये डिफॉल्ट यूजर है, यहाँ पर खुद बोल रहा है EC2 डिफॉल्ट यूजर, ये डिफॉल्ट ही आएगा, SQL-MySQL यूजर क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। चलो, तो ये यूजर अगर क्रिएट भी करते हैं, अगर सपोज एस मनाजर को हम बना लिए, ये माय डेटाबेस लॉन्च करने के लिए, डेटाबेस टेबल्स बनाने के लिए, इससे ये IAM यूजर से कोई मतलब नहीं है, नाम सेम है ना, नाम सेम खाली में कोइंसिडेंट है, बना लिया ऐसा नाम सेम, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना भाई? अब यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है ना, मुझे another one question. See, I got like both the users are different, right? The user of the IAM user is to have access to console and do the operations that are allowed on the services. Correct. Then if that is the case, right, so why we are specifically using this EC2 user here? भाई ये डिफॉल्ट यूजर है, ये इसलिए यूजर बना है सिक्योरिटी के लिए। आप AWS में डायरेक्टली लॉगिन नहीं करना, डायरेक्टली लॉगिन नहीं करना मतलब कैसा लॉगिन करोगे? एक मिनट और बता दो, ये एक सेकंड में कैंसिल कर रहा हूँ, एक चीज बता के करता हूँ। कनेक्ट, मैं कनेक्ट मारते ही हम सर्वर को कैसा लॉगिन करते हैं? एक रूट यूजर या EC2 यूजर होना ही होना है। रूट यूजर बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आ जाएगा। अगर मैं रूट मारा, ये आपको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी इश्यू है, नोबडी
इवन कहीं को यहाँ पर मेरा क्या बोलते हैं भाई, अच्छा, can I give आप can I give Ubuntu S manager user of IAM and try to access the EC2 instance? Is it not possible? manager Like S means manager which से you नहीं होगा। haven't created there, one or two, except one or two, can we use something else? ठीक है, ट्राई करो, मैं नहीं होगा S manager को रूट प्रिविलेज नहीं है, आगा राइट, S manager से आगा, बट शायद वी डोंट डू See, sudo। S manager is एक also we have created. S manager से लॉगिन कर सकते हैं, बट he cannot do switch to root, he cannot do anything, yum install telnet, no he cannot do, you need to perform the root action। भाई हम लिनक्स की तरफ जा रहे हैं थोड़ा बहुत, sudo access बोल के बोलेंगे, सो ये अनदर लेवल ऑफ कंफ्यूजन जनरेट करेगा अगर रूट से करने की कोशिश करेंगे। बाय डिफॉल्ट रूट आएगा, रूट से नहीं होगा, शायद कंसोल लेवल के होगा, रूट से होगा, बट दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ द कंसोल। यहाँ पर वेब कंसोल की वजह से होगा, बट आप रूट से लिंक करते हैं। AWS आपको आप बाहर से लॉगिन करेंगे तो AWS रिकमेंड दैट यूज दिस यूजर EC2 यूजर्स। बाहर से लॉगिन करने के लिए आपको पेम फाइल चाहिए, मैं आपको शायद नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा क्यों ये रूट यहाँ पर क्यों लॉगिन करा, बिकॉज ऑफ द कंसोल। बट जब SSH के थ्रू लॉगिन करेंगे आप तो ये नहीं होगा, मतलब दिस विल नॉट हैपन, दैट इज फॉर श्योर। अब EC2 इंस्टेंस आप यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं भाई, मतलब ये कंसोल है, आई मीन कंसोल, मतलब अब यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकते। एक मिनट, यहाँ पर है क्या की, नहीं यहाँ पर नहीं है, दूसरे सर्वर में है। अब यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकते, यहाँ पर SSH अगर लॉगिन करना है तो ऐसा लॉगिन करना पड़ेगा, देन IP एड्रेस यूज करना पड़ेगा, ऐसा लॉगिन करना है। ये लॉगिन नहीं करे, प्रॉम्प्ट तो करेगा बट आपको परमिशन डिनाइड बोलेगा। आपको की चाहिए, उसी की पेम फाइल की चाहिए। अगर फाइल भी यूज पेम फाइल भी यूज कर लिए तभी भी लॉगिन नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट इज सिंपल, ये कंसोल के वजह से लॉगिन कर सक रहे हैं आप, बट जनरली कंसोल से लॉगिन कोई नहीं करते, SSH के थ्रू लॉगिन करते। जैसे कि ये आप कुछ भी कर लो, आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे, परमिशन डिनाइड, परमिशन। रूट इज नॉट सपोज टू लॉगिन थ्रू SSH बाय डिफॉल्ट, एनीथिंग आई एम टेलिंग इज बाय डिफॉल्ट। आप ट्यून कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बिहेव करने के लिए, बट आप बाय डिफॉल्ट लॉगिन नहीं कर सकते। आप VM बिल्ड करते ही डायरेक्टली आप रूट के थ्रू ना लॉगिन नहीं कर सकते। EC2 यूजर्स के लिए भी लॉगिन EC2 यूजर से कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पेम फाइल चाहिए, मतलब जो हम पहले एक फाइल चाहिए सिक्योरिटी के लिए। भाई मैं जितना डेप्थ आऊंगा लिनक्स में उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आपको इसमें बहुत डेप्थ चीज़ें हैं, समझ में आना भाई। हेलो, अगर हम SSH से लॉगिन कर एक सेकंड, मैं 2 VM को डिस्ट्रा करके नया VM की के साथ बनाऊंगा, बात ही खत्म, टर्मिनेट कर दूंगा। आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन दिस। नया VM बिल्ड कर रहा हूँ, थोड़ा इस बार दर्द से देखिए। एक सेकंड, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स, 2 VM बनाएंगे। रोल्स ठीक है, रोल्स के बारे में छोड़ दो, एक्चुअली टॉपिक में कल पढ़ाएंगे, समझा था। इट्स ओके, एक टॉपिक में और एक टॉपिक मिक्स करे तो आपको ही कंफ्यूजन बढ़ेगा। मैं तो एक नई की बना लेंगे, चूज एक की बनाना है भाई, किस लिए, चलो पढ़ो उसके बाद। एक की कंसिस्ट ऑफ पब्लिक की दैट AWS स्टोर एंड प्राइवेट की दैट यू स्टोर। ये 2 कीज रहेंगे। समझो 2 दोस्त मिलके खजाना चोरी कर रहे, चोरी करने के बाद एक सूटकेस में डाल लिए और वो सूटकेस को 2 चाबियां लगाए, जैसे कि बैंक लॉकर, आप दुका दोस्त एक लॉक करा, वही आप वही किसी से लॉक करे, राइट। या आपका दोस्त लॉक करा और आपके घर को भेज दिया, आप क्या करें, आपके पैसे से किसे अनलॉक कर सकते हैं, आप ही अनलॉक कर सकते हैं,
आप दोषी लॉक कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट AWS में यूज करते हैं। एक AWS अपने पब्लिक की से लॉक करेगा, आप प्राइवेट की से खोलेंगे। चूज क्रिएट ए न्यू पेयर, पेयर का नाम रखेंगे AWS क्लास। डाउनलोड की पेयर, एक की पेयर डाउनलोड हो जा रहा, आपकी चाबी डाउनलोड हो जा रही। डन, चाबी डाउनलोड हो गई। एक सेकंड, अरे यार पहले हर बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर लिए उसी चाबी के साथ आप खेल सकते हैं, मतलब हर सर्वर लॉगिन कर सकते हैं। एक सेकंड, ये क्या हुआ? अरे यार ये क्या हो गया? डन। एक ही बार, दिस इज वन टाइम एक्टिविटी। आई डाउट वो VMs हैंग हो गए थे बनने में, क्रिएट नहीं हुए। विल रिक्रिएट देम। टर्मिनेटेड लॉन्च इंस्टेंस थोड़ा स्लो है। आई एम नॉट असाइनिंग एनी रोल। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस एक ही रख रहे हैं आप? क्या बोले आप? नंबर ऑफ इंस्टेंसेस एक ही कर रहे हैं? तो हाँ, अभी तो एक ही करेंगे हम। ये पुराना आ गया, देखो AWS क्लास, यही लगाना है। AWS लिनक्स लगा, क्या लगा? नहीं नहीं, AWS AWS से ऐसा वो नहीं हुआ। क्लास लगा। सॉरी VM बिल्ड होगा, अब इसे एक्सेस करना है भाई। ठीक है चलो, नो प्रॉब्लम। IAM रोल्स खत्म हो गए, अब मैं रोल्स के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। सेकंड टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया मैं। AWS VM लॉन्च करने के लिए वर्चुअल मशीन, इसे EC2 इंस्टेंस बोलते हैं हम लोग। लॉन्च करने के लिए आपको एक PEM फाइल चाहिए। मैं उसका रीजन भी बता। PEM फाइल मतलब 2 चाबियां एक सूटकेस के लिए। जो बंदा लॉक कर सकता, उसकी अपोजिट चाबी अगर आपके पास है तो आप ही अनलॉक कर सकते हो। मतलब जिस बंदे के पास ये AWS क्लास PEM है वो लॉग इन कर सकता है। डज नॉट मैटर वो कहाँ पर है। ठीक है, ये मेरा लिनक्स मशीन है और फाइल कहाँ डाउनलोड करा मैं? यहाँ पर डाउनलोड करा, राइट। डेस्कटॉप पे डाउनलोड करा मैं। ये 2 अलग अलग लोकेशन है। इसको यहाँ से यहाँ कॉपी करेंगे, मतलब मेरे लिनक्स मशीन में कॉपी करेंगे। इसलिए ऐसा हार्डकोर रूल तो नहीं है कॉपी करना, बल्कि बट मैं इजी रहता लिनक्स में लॉग इन करना। एक सेकंड भाई, स्विचिंग टू रूट। मेरा सर्वर का सर्विस SSH, आप SSH क्या, आप लिनक्स मशीन से विंडोज मशीन में कॉपी करने के लिए आपको WinSCP चाहिए। आप सिंपली आप कॉपी नहीं कर सकते। WinSCP के थ्रू आप विंडोज में तो डेटा लिनक्स में कॉपी कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू अपग्रेड दिस सॉफ्टवेयर नाउ। यहाँ पर नाम दे दीजिए, यहाँ पर एस मनाजर है, शेख में। एक मिनट, ठीक है मैं। शेख में, हाँ शेख में, शेख M। पासवर्ड मुझे मालूम है कि मतलब ये माई बिल्ड किया। ओके, ये डेस्कटॉप लेफ्ट साइड में है तो मेरा विंडोज है, राइट साइड में है तो मेरा लिनक्स है। लिनक्स सर्वर है, 2 विंडोज सर्वर समझो, लिनक्स सर्वर समझो। विंडोज में मैं डेस्कटॉप में कॉपी किया, गो टू डेस्कटॉप। ये मेरा है, इसे यहाँ ड्रैग करूंगा तो लिनक्स में कॉपी होगा। सीरियसली यस, कहाँ पर हुआ? होम शेक M में कॉपी हुआ। छोटा फाइल था उसलिए कॉपी होगा। आप जाइए होम शेक M में जाइए, यहाँ पर वो फाइल दिखेगी। आप LSFN LTR मारिए, लिस्ट करिए। सॉरी मैं डबल मारा, यहाँ पर दिख रही फाइल। अब मुझे कनेक्ट करना है। क्या करना है? EC2 इंस्टेंस, ये कैंसिल कर दे रहा हूँ मैं, ऑलरेडी कॉपी कर दिया। आई डोंट नीड WinSCP एनीमोर।
मैं यहाँ पर जाऊंगा, ये भी कैंसिल कर दूंगा। अपना सर्वर कहाँ है, रिसेंटली लॉन्च करे, तो ये एक ही सर्वर है जो रनिंग स्टेट में है। इसे कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट मारिए, SSH क्लाइंट मारिए, ये कमांड है एक्चुअली। इसमें नोटिस करो, आप सर्वर को ऐसा कनेक्ट नहीं कर सकते। कैसा नहीं कनेक्ट कर सकते? AWS ये यूज करो बोल रहा, मतलब आप अगर नोटिस करो, अरे यार शिट, कॉपी नहीं हुआ है। आप कैसा लॉगिन कर रहे हैं? चलो मैं गलत तरीके से लॉगिन करके बताऊंगा। तरीका गलत मतलब तरीका सही है, पॉसिबल वे नहीं होता। मतलब ऐसा रूट अगर होगा, मैं कभी ट्राई नहीं करा, ठीक है। ये तुम्हारा सर्वर का नाम है, प्लीज लॉग इन एज EC2 यूजर रादर देन रूट। EC2 रूट को आप डायरेक्टली SSH के थ्रू लॉगिन नहीं कर सकते। फॉरगेट अबाउट कंसोल, मैं कंसोल बताना नहीं चाहिए था आप लोगों को। SSH के थ्रू आप रूट में डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर सकते। क्यों? सिक्योरिटी, देयर इज नो अदर रूट। रूट इज अ हाई प्रिविलेजेस यूजर। तो आप क्या करो, रूट निकाल दो। यहाँ पर रूट लगा रहे हो, अगर रूट निकाल के एसमनाजर नहीं था भाई इसमें, चलो एसमनाजर को डिलीट कर दिए। EC2 यूजर ये AWS अपने लिए बना के दे रहा है। EC2 यूजर इन, आप आ गए सर्वर में, सीरियसली? यस, ये जो नीचे दिख रहा था अमेजॉन लाइनक्स EC2। ओके, आप सर्वर में प्रूफ, अगर आप सूडो प्रिविलेज, सूडो यूजर है, सूडो यूजर मतलब आप विदाउट रूट पासवर्ड के आप रूट बन जा सकते हैं। यहाँ रूट बन गए आप। इन अनदर वर्ड्स, EC2 यूजर इज ए नॉर्मल यूजर विथ रूट प्रिविलेजेस। भाई अब लिनक्स पढ़ाना पड़ रहा मेरे को, मतलब बोलना पड़ रहा, तो ज्यादा कंफ्यूजन मत होजिए। सिटी मारो, हम वहां से चलेंगे। नाउ यू आर ए रूट। हम क्या कर रहे हैं, अपने रूट ही तो बनना है, तो डायरेक्ट रूट से ही क्यों लॉगिन नहीं करते? रूट से लॉगिन करें तो आपका पासवर्ड कहीं हैक हो सकता, सिक्योरिटी रीजन की वजह से रूट लॉगिन एनेबल नहीं देते। एनेबल कर सकते क्या, वो अलग स्टोरी है। यस कर सकते, करना नहीं चाहिए। एनेबल कर सकते क्या, रूट डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, बट आई डोंट, वो माय लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक में आएगा, ठीक है। यहाँ पर ETC पासवर्ड, मैं अभी कुछ यूजर्स ने बनाया, फ्रेश सर्वर है, बट AWS अपने लिए एक यूजर ऑलरेडी बना के दिया, ठीक है। ये यूजर कहीं भी नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय कहीं भी नहीं है? AWS IAM यूजर्स में अगर कंपेयर करें तो हम AWS IAM यूजर्स में जाएंगे। दिस इज EC2 यूजर्स आर इंटरनल यूजर, इज नथिंग टू डू विथ आवर यूजर्स। ये यूजर्स सिर्फ AWS रिसोर्स एक्सेस करने के लिए ही, मगर सर्वर में लॉगिन करके काम करने के लिए नहीं होता। इज इट क्लियर? भाई बाउंस तो नहीं होगा? it's क्लियर है मनाजर भाई, बट सर्वर में लॉगिन करने के लिए सर्वर यूज करना है, फिर जो है सो इंस्टेंस में लॉगिन करने के लिए आपको AWS के यूजर्स यूज करना है, राइट? इंस्टेंस AWS सर्विसेज यूज करने के लिए आप AWS कंसोल में लॉगिन करके वहां से सर्विसेज एक्सेस करेंगे AWS यूजर्स के लिए। अगर AWS सर्वर में अगर सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं आप, वो भी AWS यूजर यूज करके सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सर्वर में जो भी यूजर रहेंगे वो AWS यूजर से मतलब नहीं है। AWS यूजर सर्वर में लॉगिन करके कुछ काम नहीं करेगा। एस्पनाजर मालूम ही नहीं है सर्वर को कौन है। समझ गया मैं, ये तो सिर्फ AWS साइड पे है, सर्वर साइड क्या? कुछ भी नहीं है ये EC2 यूजर सर्वर साइड में है। AWS यूजर से कोई मतलब ही नहीं है उसको। उसको ये नहीं मालूम है इनो कौन है, इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि सर्वर के अंदर क्या चल रहा है। इसको इन लोगों को मतलब ही नहीं है इन लोगों को, राइट? ठीक है ना भाई? Yes, these are specific user for our AWS. Correct. Those These are are the- specific user for server based. या पर इंस्टेंस यहाँ पर अगर आप बना ली तो रहेंगे, नहीं रहे वरना तो नहीं रहेंगे। बट AWS आपको हर सर्वर में ये इसलिए बना के देता, आप सिक्योरिटी मतलब हैक नहीं होना, उस सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप लोग AWS ये बना के देता। बाय डिफॉल्ट आपको बना के डिजाइन करके देता, ठीक। जस्ट ओनली फॉर द सिक्योरिटी रीजन। क्यों?
सर्वर में AWS में रूट यूजर से आप लॉगिन नहीं करना चाहिए और कर भी नहीं सकते, लॉगिन करने की कोशिश भी नहीं कर सकते आप। ये SSH सर्वर में लॉगिन करने के लिए और ये AWS कंसोल में लॉगिन करके सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज है सबको हैंडल करने के लिए। भाई जितने भी, मतलब मैं DynamoDB बना नहीं, उसकी भी रेस्ट्रिक्शंस है। ये सर्वर्स को परमिशन रहना चाहिए, ये यूजर्स को परमिशन रहना चाहिए। बाय डिफॉल्ट यूजर को कोई परमिशन नहीं रहता। ये परमिशन के लिए आपको पॉलिसीज बना रहे हैं हम, पॉलिसीज बना के अटैच करेंगे तब जाके सर्वर्स करेंगे। अगर हर सर्वर को हर प्रिविलेज देंगे तो इट विल बी अ डिजास्टर, राइट? कौन क्या कर रहा, ये टॉपिक का कोई मतलब ही नहीं बनता आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का। आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट हम इसलिए बना रहे, यूजर्स बना रहे, पॉलिसीज बना रहे, सो दैट वी रेस्ट्रिक्ट एवरीथिंग। स्पेसिफिक एक्सेस दे सकते हो, स्पेसिफिक एक्सेस और सिक्योरिटी ऐड करना है तो MFA ऐड करके दे सकते। so there are multiple ways you can restrict the user, or you can restrict the user, follow the security protocols and access the resource. That's the only purpose of this identity access management. Any questions bhai? नहीं। बहुत से लोग हैं इसमें कि एक दो ही पूछ रहे हैं। एक मिनट, सुफियान भाई समझ नहीं आया आपको? अब्दुल गनी, अब्दुल खादरी, सॉरी खादरी है। भाई पूछिए। केवल तो हम स्कूल का जमाना चले गया, कॉलेज का जमाना भी चलेगा, अब नहीं पूछे तो अब लोगों को कभी समझ नहीं आता। शायद रिलेवेंट हो या इररिलेवेंट हो। इररिलेवेंट रह तो या ये नेटवर्किंग का जो आप बोल रहे थे वो कल से स्टार्ट है ना? मैं भी कल या परसों स्टार्ट करूंगा। मैं आप लोगों को 2 दिन टाइम दूंगा पढ़ने के लिए। IP एड्रेस एंड सबनेटिंग जो पढ़ के आए वो लोग को पढ़ने में मजा आता। अगर आप पढ़ के नहीं आए शायद थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, या वो चीजों को मैं इग्नोर कर दूंगा। मैं IP एड्रेस सबनेटिंग नहीं पढ़ाता हूँ यहाँ पर। आपको टन्स ऑफ वीडियोस मिलेंगे, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, हर लैंग्वेज में मिलेंगे। IP एड्रेस सबनेटिंग इन हिंदी बोल के मारिए, आपको हिंदी में भी मिलेंगे। तो इट डजंट मैटर हाउ डू यू लर्न, पढ़ के आइए। मे बी कल या हो सके तो परसों में पढ़ाऊंगा। मैं भी कल थोड़े जनरल टॉपिक ये बोलूंगा। जनरल टॉपिक मतलब EC2 के बारे में डिस्कस करेंगे कल, या कुछ और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नाजिर भाई, सुफियान, कौन कौन है इसमें? अभी कोई क्वेश्चन नहीं मुझे लग रहा है। इरफान, मुदस्सिर, साहिब, ये पूछिए भाई। और आप लोग समझ नहीं, ये नेटिंग कॉन्सेप्ट भी नेटवर्किंग का ही है ना? हाँ, नेटिंग अपने को नहीं आएगा, बट नेटिंग थियरिटिकल आएगा। हम नेटिंग कहीं भी नहीं करेंगे, AWS अपने लिए करके देगा नेटिंग। अच्छा। वी डोंट डू मच थिंग्स, वी यूज व्हाट AWS प्रोवाइड। नेटिंग वेटिंग करने की जरूरत अपने को नौबत नहीं आती, बट हम नेटिंग इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछे लोग मेरे को, ये तो पब्लिक IP है, राइट? 52, 241, 129, 101 इज द पब्लिक IP। ओके, चलो ये पब्लिक IP है। पब्लिक IP से आप लॉगिन कर रहे हैं सीरियसली। ओके, EC2 इंस्टेंस में जाऊंगा मैं, यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा। ये पब्लिक IP है, 54, 249 पब्लिक IP एड्रेस। हम पब्लिक IP एड्रेस यूज करके लॉगिन कर रहे हैं, बट सर्वर में IP एड्रेस कमांड मारो API, आपको पब्लिक IP कहीं भी नहीं बता रहा, राइट? ये तो सर्वर के इंटरफेसेस है, ये इंटरफेस का नाम है और सर्वर का IP एड्रेस है, बट यहाँ पर तो पब्लिक IP नहीं बता रहा। पब्लिक IP गया कहाँ पर? ये नेटिंग है। समझ नहीं आ रहा आपको? नेटिंग और मास्किंग एक ही बात होती है ना? क्या नेटिंग और मास्किंग? मास्किंग तो मुझे जितना याद है स्टोरेज लेवल में यूज करते हैं आप। मुझे ये मास्किंग, नेट मास्क की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मतलब आप IP मास्क कर रहे हैं मास्किंग ना? डिफरेंट है मास्किंग। आपका एक्चुअल IP आप मास्क करके जो है एक नहीं, ये नेटिंग है भाई। ठीक है, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ कंफ्यूजन हियर। ठीक है, इंशाल्लाह आप पूछे तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर नेटिंग हो रहा। जी, नेटिंग हम नहीं कर रहे। आई एम लीस्ट बॉदर अबाउट हु इज डूइंग दिस नेटिंग। और ये AWS नेटिंग
प्राइवेट आईपी जो इंस्टेंस का है वो कब इस्तेमाल में लाते हैं मनाज भाई? सर्वर टू सर्वर कनेक्ट करने के लिए आप एक मल्टीपल सर्वर एक ही नेटवर्क में बनाएं, जी तो अब हर बार ट्रैफिक पब्लिक नेटवर्क के थ्रू भेजने के बजाय आप प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू भेज ले सकते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। Manoj, लंबा एक question concept- इधर आया, follow up question. Okay. बोलिए। See, every EC2 instance has both public and private, right? So नहीं I भाई, अभी think डिस्कस public. नहीं करेंगे, वी डोंट वांट टू क्रिएट अ डिस्कशन। मैं प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबनेट तब पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट है ना इलास्टिक आईपी एड्रेसेस, वो भी हाँ है इलास्टिक आईपी एड्रेस इज नथिंग बट अ पब्लिक आईपी एड्रेस, बट देयर इज अ बट इन दैट। बट का मतलब ये है कि इलास्टिक आईपी एड्रेस स्टैटिक आईपी रहेगा। ओके, सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक? ये आईपी है ना, अब सर्वर ये आईपी कितना है 101, राइट? जो जिस वीएम का है, अगर रिबूट कर दिया कल 1-2 दिन आने बाद, ये आईपी वही रहेगा क्या? नहीं, चेंज हो जाएगा। नहीं, चेंज हो जाएगा भाई। ऑलरेडी किसको एडब्ल्यूएस मालूम होने पर भी क्लास ज्वाइन करे, कौन है हो, चेंज हो जाएगा आपको। मतलब दिस पब्लिक आईपी इज नॉट कंसिस्टेंट पब्लिक आईपी, इट्स अ डायनेमिक आईपी। डायनेमिक मतलब चेंज हो जाएगा, तब आपको इलास्टिक आईपी पिक्चर में आएगा। और इलास्टिक Question- आईपी एक्सपेंसिव भी रहता ना, दैट विल बी चार्ज। एक्सपेंसिव भी रहेगा। आप भाई मुदस्सिर भाई ऑलरेडी आप पढ़ लेके आए क्या? नहीं, थोड़ा आइडिया है इसका मेरे को। चलो ठीक है भाई, हम कल यही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, मतलब नॉट नेटवर्किंग। डे जी। आफ्टर टुमारो नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा। कल आईपी एड्रेसिंग, नेट मास्किंग, नेटिंग क्या होता, EC2 इंस्टेंस में क्या क्या रहते, रोल्स, हम जैसा कि एक रोल कॉन्सेप्ट EC2 इंस्टेंस के लिए अप्लाई करें, तो ऐसे चीज मैं विल डिस्कस टुमारो। जब बना दो एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी ड्रॉप अप। ये जो हमारा पॉलिसी है, राइट? सो बट अगेन वी हैव क्रिएटेड रोल, सो हाउ दिस रोल एंड पॉलिसी आर भाई रोल में क्या है बोलो, पॉलिसी तो है, सिंपल नहीं। इससे पहले हम See, पॉलिसी, my question is, we are both applying. See, role also we are applying, policy also we are applying, right? So why we are creating मैं- role here? Like, what is the means main construct here? Why the concept of role has been given by Amazon when there is already policy, right? See, even if you are भाई आप- creating role, we are again attaching that policy to this role, right? भाई सिंपल So how is it different? पॉलिसी यूज करके आप EC2 इंस्टेंस को अटैच करने का प्रोविजन नहीं है। मतलब सिंपल पॉलिसी ले आके EC2 इंस्टेंस को आप अटैच नहीं कर सकते। AWS वाला ऑप्शन नहीं दिया आपको। AWS बोला जो भी है मुझे रोल के थ्रू असाइन करो। मनाज़र भाई, एडवांटेज क्या है? या बोलिए। will it be fine to answer Irfan's question? Will it be fine अगर हम ऐसा बोले कि पॉलिसी आप इंडिविजुअल असाइन करते, इंडिविजुअल रहता, मतलब अगर आप कोई एक मल्टीपल एक्सेस, अगर आप कोई चीज के लिए मल्टीपल प्रोविजनिंग देना चाह रहे हैं तो आपको मल्टीपल पॉलिसीज असाइन करना पड़ता। लेकिन Correct. वही अगर आप एक रोल में मल्टीपल पॉलिसीज असाइन करके डायरेक्ट रोल असाइन करें तो वो यूजर को वो सारे पॉलिसीज का रिलेटेड एक्सेस रहेगा, लेकिन एक रोल के अंदर रहेंगे। एक रोल इज गोइंग टू बी लाइक अ कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज। वो वैसा डेफिनेशन देना सही रहेगा? ये ठीक है, बट दिस इज वन वे। बट जनरली भाई रोल्स हम लोग खाली पॉलिसी बना के नहीं छोड़ देते, विल क्रिएट ए रोल्स। अभी ये ऐसा कि मुदस्सिर भाई बोल रहे कि समझो एक बंदे को 4 तरह के पॉलिसीज चाहिए, 4 या 6 या 10, आप पूरे पॉलिसीज को एक रोल में रख सकते। इट्स जस्ट ए लॉजिकल ग्रुप, दैट्स इट। जी। अभी मैं क्या करा, पॉलिसी को एक रोल में एक लॉजिकल बनाया और कुछ नहीं करा बॉस। मैं एक नाम दिया उसको, उसके साथ साथ मैं इसे एक ऑप्शन था कि उसमें एक रोल में और एक ऑप्शन क्या था कि EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करने का क्या बोलते हैं ऑप्शन था, मतलब लेट EC2 इंस्टेंस यूज दिस पॉलिसी। भाई डॉक्यूमेंटेशन है शायद, अगर ये आखिर मानो रोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए मुझे इनिशियली महीनों लग गए। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़े तो आप, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, आप पढ़ो डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा नहीं है।
ये AWS का डॉक्यूमेंटेशन और क्लियर है एक्चुअली, मतलब ये नहीं, वाले- इनिशियल स्टेज में आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, स्पेशली IAM। आप जैसा एक दो बार आप पढ़ेंगे, व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, व्हेन यू डू द थिंग्स, देन आपको ये डॉक्यूमेंटेशन क्लियर लगने लगेगा। मेरा इंटेंशन ये है कि लाइक when we have both the constructs, right? So why भाई we आप have to यहाँ पर जाइए, सिक्योरिटी में जाइए, AWS आपको पॉलिसी अटैच करने का परमिशन नहीं दे रहा। यहाँ पर कहाँ है पॉलिसी अटैच करने के लिए, बोलो। गेट ए विंडोज पासवर्ड, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप, मॉडिफाई IAM रोल्स। ही वांट टू डील विद द रोल्स। कुछ चीजें आंसर मेरे पास भी नहीं है, शायद AWS कैन आंसर इट। अब AWS मैटिंग की क्यों, this is a human tendency, right? Manoj, it's not like I'm just trying to ask, but just I'm trying to understand like why is it actually, why is it so? That's it. AWS provide, The intention is AWS wanted to provide roles to services rather than, yes, same reason, one of the reason ये हो सकता, multiple policies आप रोल में ऐड कर ले सकते हैं। So yeah, that seems but to हम be लोग some मैं भी इवन VMware में भी रोल्स रहेंगे, अभी एप्लीकेशन में भी रोल कॉन्सेप्ट रहेगा, लिनक्स में भी रोल, लिनक्स में नहीं, सोलारिस में रोल्स कॉन्सेप्ट है। पर्पस वही रहता। अब VMware में भी रोल रहता। वेल में क्या करते हैं, एक ग्रुप ले आके ऐड करते, ग्रुप का ग्रुप ऐड करते रोल में। ग्रुप में क्या करते हैं, पॉलिसीज ऐड करते हैं। हम लोग जब किसी को नया बंदा टीम में ज्वाइन होता, सिंपली क्या करते, हम वो रोल में ग्रुप देखते, यूजर को ग्रुप में ऐड करते, खत्म, ऑटोमेटिक उसको पूरे पॉलिसीज आ जाते, मतलब ही विल गेट ऑल द पॉलिसीज। मैं कैसा करते बताता हूँ। हम लोग VMware में अगर मैं करा तो एक रोल डिफाइन रहता, रोल टीम ऐड रहती है, टीम मतलब टीम का ग्रुप ऐड रहता। एक नया बंदा ज्वाइन है, नए बंदे को क्या करते, ले आके ग्रुप में ऐड करते। रोल में क्या रहेगा, पॉलिसीज रहेंगे, वन टाइम एक्टिविटी, एक बार बना लिए, यू आर डन। अब नया और एक बंदा आया टीम में, नया ज्वाइन करा, उसको ले आके ग्रुप में ऐड कर दे। ग्रुप का नाम ग्रुप DBA समझो, ग्रुप एडमिन समझो, मान के एडमिनिस्ट्रेटर ही समझो ना भाई, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, एक ग्रुप में ऐड कर दे। इस तरह काम होता भाई। अब होता नई नेटवर्क टीम सेटअप करे भाई, नेटवर्किंग टीम के लिए नेटवर्किंग रिसोर्सेस उन लोगों को सिर्फ देखना है, AWS का कंसोल एक्सेस होना है, बट लोग कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रिसोर्सेस चेक कर लेना। बट नेटवर्किंग बंदा AWS में काम कर रहा, तो इश्यू EC2 लेवल में है या नेटवर्क लेवल में, कैसा मालूम होना, ही नीड कंसोल एक्सेस। हम क्या करेंगे, क्या सेम थिंग, बट एग्जिस्टिंग पॉलिसी यूज करके रीड ओनली एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। सो द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको पॉलिसीज लिखने आना। द सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज आप रोल समझने आना। बाकी के सब अलग चीजें हैं, मतलब उतने फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते भाई। I think I am clear. Practice we are also करेंगे। clear. We are also clear. Fine. So tomorrow you are asking us to go through इरफान, आज नहीं तो कल आपके डाउट्स क्लैरिफाई होंगे या पढ़ते पढ़ते क्लैरिफाई होंगे। ऐसा नहीं है। सो कुछ चीज़ें क्या है ना, इन फ्यूचर में ही क्लैरिफाई होते, मतलब शायद आप काम करते खुद ही क्लैरिफाई होते। ठीक है, पूछिए, कुछ बोल रहे हैं? As of now, we are clear. I think these questions will lay the foundation for coming classes. Means if something is there, I think we can cover that. नहीं, Like you ये said, सब right? नहीं, सिर्फ इसमें रोल एक ही एक कॉन्सेप्ट है जो हम हेवीली यूज करने वाले हैं। Fine. Okay. या नो प्रॉब्लम, चलो राइट। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.